السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے کو ہیں، تاریخ بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ، اکھاڑ پچھاڑ ابھی تک صرف ڈرائنگ روم تک محدود ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کے بعد چند ایک جگہوں کے دورے کیے، وہاں الیکٹیبل سے ملاقات کی، لیکن صرف ڈرائنگ روم کی حد تک۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو جلسے کرتے نظر آ رہی ہے اور وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت جلسے کر رہی ہے، اور بلاول صاحب تو باقاعدہ ڈائلاگ ڈیلیوری بھی کر رہے ہیں اور میاں صاحب کو مشورے بھی دے رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو الیکشن کمیشن اس وقت اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے آگے وہ روڑے اٹکا سکے، کس طرح اس کو تنگ کر سکے اور کس طرح اس کو لمٹ کر سکے۔ بہرحال جو الیکٹیبلز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی سکیجول نہیں دیا، وہ ابھی تک وے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس پارٹی میں اپنا وزن ڈالنا ہے یا پاکستان کی سیاست کدھر کو جاتی نظر آئے گی۔ بہرحال اس سیاسی ماحول میں، اس رساکشی میں کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا پلاننگ کر رہا ہے، کون کتنی سیٹوں پر سوچ رہا ہے، کون حکومت بنانے کا سوچ رہا ہے، کون جوڑ توڑ کرنے کا سوچ رہا ہے، چلتے ہیں شہر اقتدار میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا خبریں ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، جو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے اس وقت یہاں پہ، اس بحث سے متعلق میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جو بھی جواب دیجیے گا، لیکن سوال میں بھی جواب تھوڑا سا نظر آئے گا۔ عرض یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں اور وہ طے ہو چکے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے؟ پہلی آپشن عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کیا اپنی سیٹیں پوری کرنے کے لیے پھر پارٹی سے ملنا پسند کریں گے؟ یہ ان کے پاس دوسری آپشن ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کرنے یا ہروانے کے لیے۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کچھ شاید پہ چیزیں طے کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کرپشن نہیں کرنے دوں گا، بلا بلا بلا، ایسی چیزیں، یہ وزیر ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، اگر وہ یہ شرائط پارٹی کے ساتھ سیٹ کر لیتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو اپوزیشن کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اب جو تنقید ہو رہی ہے، جو کہانی چل رہی ہے کہ گوہر خان نے اتنے سال پیپلز پارٹی میں کام کیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے ہیں ان چھوٹے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر، تو اگر عمران خان نے یہ موو ولفلی کی ہے پھر پارٹی کو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم الیکشن کے بعد آپ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کوئی ماڑی موو نہیں ہے، یہ ایک سینسیبل موو ہے۔ اور آج بڑی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، پرویز خٹک صاحب بول رہے ہیں کہ عمران خان سے بڑے فراڈولنٹ انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی پرانی ہسٹری ہے۔ ان کا کرٹیسزم جو ہے اس میں گھبراہٹ نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر مل جاتے ہیں تو یہ جتنی چھوٹی پارٹیز کریٹ ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری سائیڈ لائن ہو جائیں گی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ موو گوہر خان کو لانے والی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ فیوچر میں پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے حکومت بنانے کے لیے، تو کوئی یہ ماڑی موو نہیں ہے، یہ میرا خیال ایک سینسیبل موو ہے۔ تو یہ میرا نصب سوال آپ سے یہی تھا کہ اگر نون لیگ کو سائیڈ لائن کرنا ہو تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دے کین جوائن ہینڈز، کیا وہ مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جی رن صاحب۔ احمد، میں آپ کی بات کا بالکل جواب دوں گا۔ آپ نے تو خیر میرے سوال میں سے سوال نکال دیا۔
इमरान खान साहब को जेल में जो सहूलियात हैं उसके मुतालिक मुझे कुछ पता चला, आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिला, और वो नॉलेज भी मैं जो बातें बताने लगा हूँ ये कोई हवाई या टिकटॉक या व्हाट्सएप की खबरें नहीं हैं, ये वो रिपोर्ट है उन सहूलियात के बारे में जो हाई कोर्ट में जमा कराई गई है सरकारी अदारों की तरफ से। बहरहाल 7 बैरक्स को इमरान खान साहब के लिए मुख्तस किया गया है, यानी वो किसी एक बैरक में नहीं रह रहे, वो किसी एक तंग कमरे में नहीं रह रहे जिसका शोर होगा पीटीआई के लोग कर रहे थे। बहरहाल इन 7 बैरक्स में वो बहुत आसानी से वॉक कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेड मिल उनके पास है, उन्होंने अपने खर्चे पर मंगवाई है, लेकिन बहरहाल वो उनको अवेलेबल कर दी गई है। अखबार, किताबें और टीवी की सहूलियात भी उनको मौजूद हैं। तकरीबन 5 से 7 के करीब चैनल जो हैं वो उनको वो केबल उनको लगा कर दी गई है। नॉर्मली आज से पहले जितने, नॉर्मली तो नहीं कहना चाहिए, इबनॉर्मल तरीके से जितने भी वज़ीर आज़म जेलों में गए हैं उनको सिर्फ एक पीटीवी की इजाज़त दी जाती थी, मगर खान साहब हैं तो बहरहाल उनका खाना घर से आता है जिसमें देसी घी में पका हुआ मटन और चिकन उनको दिया जाता है, और प्लस उनको फ्रूट भी खाने के लिए दिया जाता है। सो खान साहब बहुत मज़े में हैं। पीटीआई के जितने फॉलोअर्स हैं उनको इस पर थोड़ा सा इत्मीनान होना चाहिए कि उनको कोई इतने बड़े मसले मसाइल नहीं हैं। ही इज़ पॉलिटिकली एक्टिव एज वेल, वहाँ पर रहते हुए भी एट द सेम टाइम वो इस कोशिश में भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कोई अच्छे तल्लुकात उस्तवार हो जाएं, कोई दोस्ती हो जाए। और ख़ान साहब ने एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब से भी रब्ता कायम किया है और उन्हें कहा है कि अपने तल्लुकात इस और अपना असर रसूख इस्तेमाल कीजिए और किसी तरीके से सुलह करवाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल उन्होंने उन जनरल साहब को ये भी कहा है कि वो हर किस्म की गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं, जिस किस्म की भी गारंटी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। मैंने तो पूरा एक प्रोग्राम किया है कि डील हो गई है, मेरी अभी भी यही खबर है कि खान साहब की डील हो गई हुई है। बहरहाल जो द अदर साइड है वो उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माजी में जिस किसी ने भी सियासतदान ने या फौजी ने उन पर ट्रस्ट किया है, खान साहब ने उसे डिच ही किया है। उन्हें जिस काम से मना किया जाता था, जो कहने से मना किया जाता था, वो बात जान कर करते थे और ज़रूर करते थे। बहरहाल उसमें मौलाना डीजल साहब का नाम वाला वाक़या भी शामिल है कि जब जनरल बाजवा ने उनको कहा कि प्लीज़ आप मौलाना फजलुर रहमान का नाम ना चेंज किया करें, उनका मजाक ना उड़ाया करें, अगर आपने उनको मेंशन करना ही है तो उनका नाम ठीक तरीके से लें। तो उन्होंने उसी दिन शाम को जलसे में जनरल बाजवा को कोट करने के बाद वो बात वहाँ पे की और उनको डीजल भी कहा। बहरहाल ये होता है आप जब किसी को जानकर इरिटेट करना चाह रहे हों। जहाँ तक अहमद के सवालों की बात है, अहमद, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, मुझे बड़ी क्लैरिटी है, और एक बात आपको भी समझनी चाहिए कि खान साहब से लोग इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि खान साहब ने कोई बहुत डिलीवर किया है, खान साहब कोई बहुत पाए के सियासतदान हैं। खान साहब की फॉलोइंग इसलिए है कि लोग पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बदमाशियों से तंग आ चुके थे। खान साहब की फॉलोइंग बेसिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी की नालायकी की वजह से है। अगर खान साहब को पिछले 5 साल पूरे किए जाने दिए जाते तो जो पीडीएम को आज जूते पड़ रहे हैं वो खान साहब को पड़ रहे होते, लेकिन खान साहब की किस्मत बहुत अच्छी है। जहाँ तक आपने बात की कि खान पीपल्स पार्टी या नून लीग से अगर इत्तेहाद करता है, मेरा ख्याल है अगर खान साहब पीपल्स पार्टी से या नून लीग से अगर इत्तेहाद में जाते हैं तो अगर 5 साल के बाद उनकी दोबारा वज़ारत उज़्मा या उनकी हुकूमत आनी भी है तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने उस बेसिक बयानिए के अगेंस्ट जाएंगे कि वो उनसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, वो उनके साथ एक मेज़ पर बैठकर बात भी नहीं करना चाहते। दो ये एक गैर सियासी रवैया है, मगर उनके फॉलोअर्स भी उन्हीं की तरह हार्ड लाइनर्स हैं और वो इसी बयानिए को पसंद करते हैं। इसी वजह से खान साहब उनके लिए रेड लाइन है।
लेकिन जब मैं खान साहब की ज़ाती पर्सनालिटी को एवेलुएट करता हूं तो एट द सेम टाइम खान साहब पावर हंग्री भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें लस्ट ऑफ पावर के लिए वो किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए तैयार है। वजारत उज़्मा उनको चाहिए हर हाल में। आपने खुद देखा कि माजी में उनकी दो हुकूमतें थीं, पंजाब और KPK में, और वो सेंटर के इलेक्शन को हासिल करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी चलती हुई हुकूमतों को उन्होंने खुद गिरा दिया ताकि वो उनको इलेक्शन मिल जाएं, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो इलेक्शन उनको मिल जाएंगे और वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है खान साहब के बारे में कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते या इलेक्शन होने तक खान साहब अपना पूरा जोर लगाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट से अपने तल्लुकात ठीक करें और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अगेन ये PTI की मौत होगी। हाँ, अगर इलेक्शन के बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो आप इस चीज़ को भी मत भूलें कि जरदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाह रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने साफ हामिद मीर के प्रोग्राम में आकर कहा कि उसके लिए वो बसात भी बिछाएंगे। मुझे तो ये पीपल्स पार्टी का बॉन्ड जो आपने बताया और जो आपने मेक ब्रेक बताई उसमें वो बनता दिखाई नहीं देता। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वक्त ज़्यादा दूर नहीं, मैदान भी है, घोड़ा भी है, और हमें पता चल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल बता देगा इलेक्शन का, तो जब टिकट मिलना शुरू हो जाएंगे लोगों को, तो जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त ड्राइंग रूम में है वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर हलकों में और धड़ों में और सड़कों पर और बेल बोर्ड्स पर भी आ जाएगी। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।